آپ کی نماز جنازہ کسی نے امام بن کے نہیں پڑھوایا تھا. مسئلہ یاد رکھیے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ کسی نے امام بن کے نہیں پڑھوایا تھا. ارے جو دنیا کا امام ہے کیا اس کا امام بننا جائز ہے؟ نہیں میرے بھائیو, جو دنیا کا امام ہے اس کے لیے کوئی امام کی ضرورت نہیں. ہر ایک آیا اور نماز جنازہ پڑھاؤ پھر چلا گیا, پھر ایک آیا پھر نماز جنازہ پڑھا پھر چلا گیا, پھر دوسرا. اسی طریقے سے 3 دن تک آپ کی نماز جنازہ پڑھی گئی. کتنے دن میرے بھائیوں؟ 3 دن تک آپ کی نماز جنازہ پڑھی گئی. کتنے گھنٹے ہوتے ہیں؟ 72 گھنٹے آپ کی نماز جنازہ پڑھی گئی. کسی آدمی کا اگر دنیا کے اندر کسی کے لاش کو 3 دن تک رکھا جائے تو وہ لاش سڑنے لگتا ہے, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لاش کو کچھ نہیں ہوا تھا. بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. وقال تعالى في موضع آخر اللهم الرفيق الأعلى. محترم اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بھائیوں، آج انشاءاللہ موت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے انشاءاللہ 2-4 گفتگو کروں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اور صحابہ کرام کا محبت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کس طریقے سے ہوئی ہمیں تو جاننا ہے۔ ارے ہم ان کے امتی ہیں تو ہمیں تو جاننا ہی ہوگا نا کہ کس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، یہ ہمیں جاننا ہے۔ آئیے، جب اسلام پھیلنے لگا، بہت پھیلنے لگا، اب اسلام کو پھیلانے کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے، اسلام ویسے ہی پھیل رہا ہے، پہلے کے جیسا نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کتنی کشٹ کرتے تھے اسلام پھیلانے کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے طائف گئے، 100 کلومیٹر کا سفر طے کرے، 100 کلومیٹر کا سفر آپ نے پیدل چل کے طے کیا، اور آپ نے جا کر کے وہاں کے بادشاہ سے کہا، اے بادشاہ تم اسلام قبول کر لو، میں اللہ کا رسول ہوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ ہے اور اللہ کا رسول میں ہوں، تم اسلام قبول کر لو۔ جب یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو اس بادشاہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایسے ایسے گستاخیاں کی اور کہا کہ اللہ کو اور کوئی نہیں ملا تھا جو تمہیں نبی بنا کر کے بھیج دیا ہے، نعوذ باللہ۔ کیسے کیسے جملے ہمارے نبی کے شان کے خلاف بیان کیے گئے۔
अल्लाह को और कोई नहीं मिला था जो तुम्हें नबी बना करके भेज दिया। ऐसी जुमले हमारे नबी के सामने बोले भाई। लेकिन अब अल्लाह के रहम करम से जो है इस्लाम फैल रहा है, कुरान भी नाजिल बंद हो गया, कुरान भी नाजिल होना बंद हो गया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने रसूल को बुलाने की जो है कोशिश की। अल्लाह तबारक व तआला अपने नबी को बुला रहा है। किस तरीके से बुला रहा है तो देखिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से कहा, क्या है लोगों, ये बताओ क्या मैंने तुम तक पूरी अच्छी तरह से इस्लाम पहुंचाया या नहीं? सारे के सारे लोगों ने कहा कि अल्लाह के रसूल, आपने इस्लाम पहुंचाया ही नहीं बल्कि आपने इस्लाम को मुकम्मल करके हम तक पहुंचा दिया है। अब अल्लाह तबारक व तआला ने भी कहा कि हाँ, आज दीन मुकम्मल हो गया, आज दीन मुकम्मल हो गया, आज इस्लाम फैल गया है। अब अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी को बुलाना चाह रहे हैं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हज्जतुल विदा के 3 महीने के बाद आपके सर में थोड़ा सा दर्द होता है, जुकाम होता है, आप आके अपने हुजरे में सो जाते हैं, आप अपने हुजरे में घुस जाते हैं मेरे भाइयों थोड़े ही दिनों में, और बुखार की शिद्दत बढ़ती गई, इतनी शिद्दत बढ़ते गए कि आप मस्जिद में आपका जाना भी मुश्किल हो गया। आप मस्जिद में जाना भी मुश्किल हो गया है। कितना दूर है मस्जिद? अरे इतनी करीब में ये मस्जिद है, एक ही पर्दा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुजरे के और मस्जिद नबी के बगल में एक ही पर्दा है। अगर वो पर्दा हटा दिया जाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद के अंदर चले जाएंगे। लेकिन आप इतनी तकलीफ में हैं, इतने तकलीफ में हैं कि आप उस पर्दे को हटा करके अपने मस्जिद में भी एंट्री करना, आप उस मस्जिद में भी नहीं जा सकते, इतनी बुखार की शिद्दत है मेरे भाइयों। फिर आपने हजरत अबू बकर सिद्दीक से कहा, अरे अबू बकर इधर आओ। अबू बकर से कहा, अरे अबू बकर तुम आज से नमाज पढ़ाओगे? अबू बकर ने कहा कि अल्लाह के रसूल ठीक है मैं नमाज पढ़ाऊंगा। अब नमाज चलता रहा, नमाज चलते रहिए, थोड़े ही दिनों में आपका इतनी शिद्दत बढ़ते गए, इतनी शिद्दत बढ़ते गए कि एक दिन हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु आपकी खिदमत में आते हैं और आने के बाद कहने लगते हैं, आए अल्लाह के रसूल, सारे के सारे लोग आपको याद कर रहे हैं और सारे के सारे लोग रो रहे हैं। हजरत अब्बास ने क्या कहा कि अल्लाह के रसूल सारे के सारे लोग आपको याद कर रहे हैं और रो रहे हैं। आहा, सुनिए मेरे भाई, क्यों रो रहे हैं? इतनी नबी से मोहब्बत है। आज नबी वो नबी है मेरे भाइयों। एक सहाबी के हाथ में आपने अंगूठी देखा और आपने उस अंगूठी को निकाल करके फेंक दी, जमीन के अंदर फेंक दिया और कहा कि मर्द होकर के अंगूठी पहनते हो, तुम्हें शर्म नहीं आता? अरे मर्द के लिए सोने की अंगूठी हराम है, तुम कैसे सोने की अंगूठी पहन लेते हो? जैसी आपने वो अंगूठी को फेंका, जैसी आपने उस अंगूठी को फेंका और चले गए, एक सहाबी आया और आने के बाद कहने लगा कि अरे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अंगूठी को तो फेंका है, तुम्हारे हाथ से निकाल करके फेंका है, लिहाजा तुम इस अंगूठी को उठा लो, उठाने के बाद अपने घर में माँ बहन बेटी को पहना देना, किसी को भी पहना देना, ले लो इसे, उठा लो, उठा करके लेके चले जाओ। वो सहाबी कहता है
आए मेरे दोस्त, अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अंगूठी उठा करके, ये अंगूठी मेरे उंगली से निकाल करके मेरे हाथों में दे देता और ये कहता कि ये लो ले करके जाओ और अपने माँ बहन बेटी को पहना देना, तुम मत पहनना, मर्द के लिए हराम है। अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहते तो मैं ले लेता, लेकिन आए मेरे दोस्त, आए मेरे भाई, मेरे नबी ने तो ऐसा नहीं किया। मेरे नबी ने खोल करके फेंक दी और मेरे भाइयों और कहा कि आए मेरे भाई, मुझे ये खबरा नहीं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नफरत की नजर उस अंगूठी में पड़ी थी और वो अंगूठी उठा करके अपनी माँ बहन बेटी को मैं कैसे पहना दूं, लिहाजा मैं इस अंगूठी को नहीं उठाऊंगा। मेरे नौजवान साथियों, उस वक्त सोने की कीमत कितनी होगी? अभी तो माशाअल्लाह सोने की कीमत इतने कीमत है कि हर आदमी के पास सोना नहीं है, लेकिन उस वक्त मेरे भाइयों अल्लाह के रसूल की फेंकी हुई चीज नफरत की नजर पड़ गई, इसीलिए सहाबी ने उठाना गवारा नहीं किया। कितनी मोहब्बत करते थे, सुनी कितनी मोहब्बत करते थे मेरे भाइयों अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, कितनी मोहब्बत। आज वो नबी मस्जिद के अंदर नहीं आ सकते हैं, हर आदमी को दुख होगा, हर आदमी को दुख होगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी सी बात मानने वाला वो सहाबी आज अल्लाह के रसूल मस्जिद के अंदर नहीं है तो सब रो रहा। आपने हजरत अली को बुलाया, आए अली इधर आओ मुझे पकड़ो, आए अली इधर आओ मुझे पकड़ो। आपने उसकी कांधे को पकड़ा और पकड़ने के बाद आप मस्जिद नबवी के अंदर गए और जाने के बाद जैसे आप मस्जिद नबवी के अंदर गए, सारे के सारे सहाबाए किराम जमा हो गए। आज हमारे नबी मस्जिद के अंदर आए हैं, सारे के सारे लोग खुश हो गए, हमारे नबी आज मस्जिद के अंदर आए हैं। मेरे नौजवान साथियों, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा दिया। क्या खुतबा दिया? यही खुतबा दिया कि आए लोगो सुनो, अगर तुम्हारे नबी मर जाए और अगर तुम्हारे नबी से दुनिया से चले जाए, क्या तुम दीन से फिर जाओगे? लोगों ने कहा कि नहीं। अल्लाह के रसूल ने कहा कि आए लोगों, मुझसे पहले जितने रसूल पैगंबर आए थे क्या वो दुनिया के अंदर है? नहीं ना, तो मुझे भी जाना है और मेरा टाइम बहुत करीब है। अब मुझे अल्लाह के पास जाना है, बहुत करीब है मेरा टाइम, मुझे अल्लाह के पास जाना है। और सब नबी आए और सबको इस दुनिया छोड़ करके जाना हुआ, तो मैं भी चला जाऊंगा, इसमें क्या है? अरे अगर मैं चला जाऊं तो क्या तुम दीन से फिर जाओगे? लोगों ने कहा नहीं अल्लाह के रसूल नहीं। और आपने कहा कि आए सहाबा, तुम्हारे साथ मेरा जल्द ही मुलाकात होगा हौज़े कौसर पर, तुम्हारे साथ मेरा मुलाकात होगा हौज़े कौसर पर। अगर तुम किसी को गाली न दोगे, अगर तुम किसी को बुरा भला न कहोगे, अगर तुम किसी को ना डांटोगे न झगड़ोगे, आपसी में रिश्ता बना करके रहोगे, हाँ किसी से न झगड़ोगे, तो कल कयामत के दिन तुम्हारे साथ मेरा मुलाकात होगा हौज़े कौसर पर। अब हर आदमी अपने तरफ सोचे कि एक आदमी कितने दिन भर में गालियां देते, लेकिन अल्लाह के रसूल ने फरमाया अगर तुम गाली ना दोगे तो हौज़े कौसर पर हमारे साथ तुम्हारा मुलाकात होगा। कैसे होगा? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हदीस सुने नहीं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर आदमी को अपनी उम्मत को पानी पिलाएंगे, हर आदमी को हौज़े कौसर का पानी पिलाएंगे, और जो आदमी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ से हौज़े कौसर का पानी पी ले, ज़मज़म की पानी पी ले, तो क़यामत जब तक हिसाब किताब ना हो जाए तब तक उसे प्यास नहीं लगेगा। कौन नहीं चाहता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुलाकात हो? हर आदमी चाहता है। फिर आपने ये तकरीर की और करने के बाद आप अपने हुजरे के अंदर चले गए। हुजरा समझते हैं? घर। आप अपने हुजरे के अंदर चले गए और जाने के बाद सो गए।
कुछ दिन के बाद इतने बुखार की शिद्दत बढ़ते गए, इतनी शिद्दत बढ़ती गई, इतनी शिद्दत बढ़ती गई कि आपका उठना और आपका बैठना भी मुश्किल हो गया, आपका उठना और बैठना भी मुश्किल हो गया। मेरे नौजवान साथियों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बर्तन पर पानी मंगाया, एक बर्तन पर पानी मंगाया और मंगाने के बाद आप अपने साइड में रख लिए, अपने साइड में रख लिए। रखने के बाद आपने एक हाथ को अपने पानी के अंदर डुबो दिए और डुबोने के बाद उस हाथ से हल्के हल्के पानी उठाते और अपने मुंह में छिड़कते, फिर पानी उठाते फिर अपने मुंह में छिड़कते ताकि बुखार की शिद्दत थोड़ी कम हो जाए। लेकिन मेरे भाइयों, बुखार की शिद्दत भी कम नहीं हो रही है। मेरे भाइयों, इसी दौरान आपने मिसवाक की तरफ देखा कि मुझे मिसवाक करना है। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने मिसवाक तोड़ करके लाई और लाने के बाद हजरत आयशा ने अपने दांतों से चिबाया और चिबोने के बाद आपके मुंह में डाल दी। फिर आपने मिसवाक किया, चिबाई, चिबोने के बाद आपने अपने मुंह में डाल दी और जैसे आप अपने मुंह में डाली, मेरे भाइयों, हर आदमी को अब गौर करना चाहिए कि हम कितने मिसवाक करते हैं, हम कितने मिसवाक करते हैं। मेरे भाइयों, हम हमारे जिंदगी में डिपेंड करें कि हम कितने नबी की सुन्नत को जिंदा करते हैं। आज वो नबी दुनिया के अंदर से जा रहे हैं फिर भी मिसवाक कर रहे हैं, लेकिन आज हम दिन में भी सुबह उठ करके बराश करते हैं। हाँ, हमें तो मिसवाक करना तौफीक नहीं होता है मेरे नौजवान साथियों, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी वक्त में भी मिसवाक कर रहे हैं, आखिरी वक्त में भी मिसवाक कर रहे हैं। मेरे भाइयों, मिसवाक करने के बाद आप मिसवाक जैसे किए करने के बाद थोड़े ही दिनों के बाद और बुखार की शिद्दत बढ़ती गई और बुखार की शिद्दत बढ़ते गए। एक दिन आपका लास्ट दिन है, आपका आखिरी दिन है, उस दिन आप दुनिया के अंदर से चले जाएंगे, दुनिया के अंदर से आप चले जाएंगे। उस दिन आप फजर, हजरत अबू बकर सिद्दीक फजर की नमाज पढ़ा रहे हैं और फजर की नमाज पढ़ाते पढ़ाते आपने पर्दा को हटाया और हटाने के बाद आपने खूबसूरत चेहरा, चांद जैसे चेहरे को आपने अंदर किया। जैसी मस्जिद नबी के अंदर आपने चेहरा किया, चांद जैसा खूबसूरत चेहरा आपके मस्जिद के अंदर गया। सारे के सारे सहाबाए किराम खुश हो गए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा चमक रहा है। सारे के सारे लोग खुश हो गए और यहाँ तक खुश हो गए कि सारे के सारे सहाबाए किराम नमाज को तोड़ना चाह रहे थे, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ऐ लोगों, नमाज को मत तोड़ो, नमाज पढ़ते रहो। आपने हाथों से इशारा किया, फिर आपने चेहरे को अंदर कर ली। चेहरे को अंदर करने के बाद आपने पर्दा लगा दिया, इसीलिए कि अगर वो चेहरा को अंदर करके रखे, मस्जिद नबी के अंदर रखे, कहीं इसमें सहाबाए किराम को डिस्टर्ब ना हो जाए नमाज के अंदर, इसलिए आपने चेहरे को अंदर कर लिया। चेहरा था ना, चेहरे को अंदर कर लिया। मेरे भाइयों, फजर की नमाज पढ़ाने के बाद ज़ोहर की नमाज पढ़ी और असर के टाइम आप दुनिया से चले गए। अल्लाहुम्मा रफ़ीक़िल आला कहते हुए आप दुनिया के अंदर से चले गए। अब आप दुनिया के अंदर से चले गए। अब आपके मौत की खबर बिजली की तरह फैल गई, आपकी मौत की खबर बिजली की तरह फैल गई। कैसी बिजली की तरह? लाइट ऑफ करो तो बंद और लाइट को ऑन करो चालू, बिल्कुल उसी तरह अल्लाह के रसूल से जैसी आपका इंतकाल हुई, आपके इंतकाल होने के बस बिजली की तरह आपकी मौत की खबर तमाम सहाबाए किराम पर पहुंच गया। अच्छा ये बताइए, दुनिया के अंदर अगर किसी बड़े आदमी का इंतकाल हो तो उसकी मौत की खबर फैलने में टाइम लगेगा? नहीं लगेगा। बड़ा बड़ा नेता है, बादशाह है, अगर कोई बादशाह भी मर गया तो ये कहते हैं ना कि ओ फलाने बादशाह मर गया और
तुरंत उसकी मौत की खबर दुनिया के अंदर फैल जाती है। और अगर एक आम आदमी मरता है उसकी मौत की खबर जल्द ही नहीं पहुंचते हैं, उसकी मौत की खबर दुनिया के अंदर बहुत जल्द नहीं पहुंचते हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात की खबर सहाबाई किराम में एकदम बिजली की तरफ फैल गई, बिल्कुल बिजली की तरफ फैल गई। कुछ सहाबाई किराम को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हो गई। और उमर फारूक ने क्या किया था मालूम है? खंजर निकाला। खंजर निकालने के बाद कहा कि जो आदमी कहेगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंतकाल हो गए, मैं उनके सर में खंजर मार के उनके सर को तन से जुदा कर दूंगा। क्या देखिए, नबी से मोहब्बत हो तो ऐसा होना चाहिए। कोई आदमी अब आइए एक वाक्य सुना देता हूं, नबी से मोहब्बत की वाक्य, पूरी बिल्डिंग गिरा दे रहा है। आपने एक रास्ते से जा रहे थे और एक आदमी ने मकान बनवाया, बहुत अच्छा मकान है। तो आपने मकान को देखा और देखने के बाद आपने कहा कि बहुत अच्छा मकान है, अल्लाह बरकत दे, बहुत अच्छा मकान है। लेकिन उस आदमी ने मकान के ऊपर गुंबद बनवाया था। क्या बनवाया था? गुंबद समझते हैं? जो मस्जिद के ऊपर खड़ा करके वो गुंबद होते हैं, उसे गुंबद कहते हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर ये ना होता तो अच्छा होता। न जाने इसके घर को अगर इसके घर को किसी आदमी ने मस्जिद समझ करके चला गया तो इनके घर के परिवार को, इनके औरतों को बेपर्दगी हो जाए। इसीलिए ये अगर न होता तो अच्छा होता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कह के आप आगे बढ़ गए, या आप कहने के बाद आप आगे बढ़ गए। जब वो मालिक का मकान आया, मकान बनवाने वाला वो आदमी आया, जैसे वो आदमी आया और आने के बाद मजदूरों ने कहा कि आए, आपके मकान को अल्लाह के रसूल ने देखा है। यह आदमी कहा कि अल्लाह के रसूल ने देखा है, बताओ क्या कहा है? अरे जल्दी बताओ, अल्लाह के रसूल ने मेरे मकान को देख करके क्या कहा है? ये सारे के सारे मजदूर, एक मजदूर ने कहा कि अल्लाह के रसूल ने ये कहा है, अगर तुम्हारे मकान में ये गुंबद ना होता तो बहुत अच्छा होता। न जाने तुम्हारे घर को कोई आदमी अगर मस्जिद समझ करके घुस जाए तो तुम्हारे माँ बहन बेटी के साथ बेपर्दगी हो जाएगी। इसीलिए अगर ये गुंबद न होता तो अच्छा होता, अगर ये गुंबद न होता तो अच्छा होता। आपने उस मकान के मालिक ने सारे के सारे आदमी, सारे के सारे मजदूरों से पूछा, एक से पूछा ये बताओ क्या ये सही कह रहे हैं, दूसरे से पूछा ये बताओ क्या ये सही कह रहे हैं, तीसरे से पूछा ये बताओ क्या सही कह रहे हैं। सारे के सारे मजदूरों ने यही कहा कि हाँ, अल्लाह के रसूल ने यही कहा है। और आपने कहा, और मकान के बनवाने वाले ने कहा, मकान वाले ने कहा कि ऐ मजदूरों रुक जाओ, अब मेरे मकान को बनाना छोड़ दो, मेरे मकान को गिराना शुरू कर दो, मेरे मकान को बनाना छोड़ दो और मेरे मकान को गिराना शुरू कर दो। सारे के सारे आदमी ने कहा कि अल्लाह के रसूल ने तो गुंबद पर कराहियत की नजर डाला है, तुम गुंबद को हटा दो, तुम गुंबद को हटा दो। लेकिन वो सहाबी कहते हैं, आए मेरे दोस्त, जब अल्लाह के रसूल ने गुंबद की तरफ देखा होगा, आपने गुंबद की तरफ कराहियत की नजर से देखा होगा, न जाने आपकी नजर गुंबद से नीचे आई होगी तो किस किस ईंट पर पड़ी होगी। लिहाजा मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे नबी की कराहियत की नजर की ईंटें मेरे मकान में रहे, लिहाजा तुम सारे के सारे ईंटों को फेंकाओ, लिहाजा मैं नया ईंट लाऊंगा और फिर उससे मकान बना
بنانا چالو کر دو. سارے کے سارے بلڈنگ کو گرا دے رہے ہیں نبی کی محبت, بس نبی کے ایک جملے میں, اور پھر گنبد کو گرانے کی باتیں. آج وہ نبی دنیا چھوڑ کر کے جا رہے ہیں, آج وہ نبی دنیا چھوڑ کر کے جا رہے ہیں. تو کیوں عمر فاروق نے جو کہا تھا تلوار نکالا تھا, کیا صحیح تھا یا غلط؟ صحیح معنی میں وہ تلوار نکالا تھا میرے بھائیوں, اور کہا کہ جو آدمی کہے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ہوئی ہے, میں ان کے گردن پر ایک تلوار ماروں گا اور اس کی گردن کو تن سے جدا کر دوں گا میرے بھائی. وہ کہا تھا کہ اگر کوئی آدمی کہے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو اس کی گردن پہ ایک تلوار ماروں گا, اور مارنے کے بعد اس کی تن اور اس کی سر کو تن سے جدا کر دوں گا. اتنی محبت ہے میرے بھائی. پھر آپ کی لاش کو غسل دیا گیا اور دینے کے بعد کفن پہنائی گئی, اور کفن پہنانے کے بعد آپ کی لاش کو آپ کی لاش جہاں پر انتقال ہوا تھا آپ کا, وہیں پر لاش کو لے کر کے رکھ دیا, لاش مبارک کو لے کر کے رکھ دیا گیا. ہر ایک آدمی ایک ایک کر کے آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ پڑھی. آپ کی نماز جنازہ کسی نے امام بن کے نہیں پڑھوایا تھا. مسئلہ یاد رکھیے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ کسی نے امام بن کے نہیں پڑھوایا تھا. ارے جو دنیا کا امام ہے کیا اس کا امام بننا جائز ہے؟ نہیں میرے بھائیو, جو دنیا کا امام ہے اس کے لیے کوئی امام کی ضرورت نہیں. ہر ایک آیا اور نماز جنازہ پڑھا پھر چلا گیا, پھر ایک آیا پھر نماز جنازہ پڑھا پھر چلا گیا, پھر دوسرا. اسی طریقے سے 3 دن تک آپ کی نماز جنازہ پڑھی گئی. کتنے دن میرے بھائیوں؟ 3 دن تک آپ کی نماز جنازہ پڑھی گئی. کتنے گھنٹے ہوتے ہیں؟ 72 گھنٹے آپ کی نماز جنازہ پڑھی گئی. کسی آدمی کا اگر دنیا کے اندر کسی کے لاش کو 3 دن تک رکھا جائے تو وہ لاش سڑنے لگتا ہے, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لاش کو کچھ نہیں ہوا تھا, اور آپ کی لاش کو 3 دن تک اس دنیا کے اندر رکھا گیا. مرنے کے بعد آپ کی لاش مبارک کو اس دنیا کے اندر 3 دن تک رکھا گیا. میرے بھائیوں یہ ہے نبی, اور یہ ہے نبی سے محبت. میرے بھائیوں اتنی سی بات تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تعلق سے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین ہم میں سے جتنے بھی مسلمان ہیں, اے اللہ اگر وہ قبر کے اندر چلے گئے ہیں, اللہ اگر ان کی قبر کے اندر ان کو جو ہے پریشانیاں ہوتی, اگر ان کو عذاب ہوتی, اللہ ان کے عذاب کو دور فرما. اے رب العالمین ہم میں سے کتنے مسلمان ہیں جو دنیا کے اندر دنیا سے چلے گئے, اللہ جب ہمارا موت آئے, ہم سب کا موت آئے, تو ہمارا خاتمہ اسلام پر کرنا. آمین. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.